السلام علیکم فرینڈز، میں عثمان آپ سب کا کتاب محل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں جنات کا غلام قسط نمبر 18 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سب لوگ نہیں جانتے، مگر میں جانتی ہوں تمہیں اس حویلی سے اتنا پیار کیوں ہے۔ میں شاید تم سے آج کے بعد کچھ نہ کہہ پاؤں گی، بس یہی التجا کرتی ہوں کہ واپس چلے جاؤ اور پھر ہو سکے تو مجھے بھول جانا۔ میں ایک مجبور لڑکی ہوں، میرا اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ زلیخا، کاش تم پہلے بول پڑتی، کاش تم نے اپنے جذبوں کو زبان دی ہوتی تو میں اور تم آج اس دوراہے پہ کھڑے نہ ہوتے۔ میں بامشکل بولا، اسی لمحہ چاچی اندر سے آ گئیں۔ انہوں نے ایک سرخ ڈبے میں زلیخا کے گہنے رکھے تھے۔ وہ ایک ایک گہنا، چوڑیاں، کڑے مجھے دکھانے لگیں۔ یہ ہمارا خاندانی گہنا ہے پتر، میں سارے زیور اپنی بچی کو دے دوں گی، میری زلیخا شہزادی لگے گی۔ بد نصیب، نصیبوں جلی شہزادی ماں، زلیخا آہستہ سے بولی اور پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ چاچی ایک سادہ عورت تھی، انہیں کیا معلوم تھا کہ زلیخا کے ان لفظوں میں کیا حقایات اور کیسے کیسے آسودہ ارمان چھپے ہوئے تھے۔ چاچی، وہ زیور کہاں ہیں جو بابا جی لائے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو شاہ صاحب کے پاس ہیں، انہوں نے کل مجھ سے لے لیے تھے کہ میں ان کا ڈیزائن تبدیل کرانا چاہتا ہوں۔ کل کس وقت؟ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ کل صبح، وہ بولی۔ جب پولیس آئی تھی اندر اس وقت؟ ہاں، اس کے 5-10 منٹ پہلے ہی آئے تھے، مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ بس ویسے ہی، میں نے سوچا کہ یہ گہنے دیکھ رہے ہیں تو زلیخا کے سسرالی زیور بھی دیکھ لوں۔ میں نے بات بدل دی۔ میں کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اب پڑھائی میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ زلیخا کی شکوہ بھری آنکھیں میرے ذہن پر سوار تھیں اور میں خود کو کوس رہا تھا کہ تم نے بہت دیر کر دی، بہت دیر۔ اب تم کبھی زلیخا کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس بے قراری کا کوئی اور بھی تماشا دیکھ رہا ہے۔ جب خاصی دیر ہو چکی تو مجھے غازی کی چہکتی ہوئی آواز آئی، بھیا اب آرام سے بیٹھ بھی جاؤ، کس پریشانی میں غرق ہو؟ میں چونک پڑا۔ غازی میرے بستر پر دراز تھا۔ بھیا تم کیا سمجھتے ہو میں اس بے قراری کو نہیں سمجھتا؟ میں کب سے تمہارے پیچھے جاسوسی کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں بڑبڑا گیا۔ تم کیا جانتے ہو؟ بھیا میں نہیں جانتا تو پھر لعنت ہے میرے جن ہونے پر۔ وہ افسردہ سا ہو کر بولا، میرا بھائی ارمان مر گیا اور کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا؟ میں ابھی بچہ ہوں، مگر میری عقل اور نظر بچوں جیسی نہیں ہے۔ میں گھبرا گیا۔ دیکھو غازی، تم کسی سے یہ بات نہیں کرو گے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کس سے نہ کروں؟ ملک صاحب سے یا بابا جی سے یا پھر شاہ صاحب سے؟ کسی سے بھی نہیں۔ بھیا اس بات کا صرف حویلی کے مکینوں کو پتہ نہیں ہے، بابا جی اور شاہ صاحب تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اور یہ جو نظم تم ابھی پڑھ رہے تھے، یہ جب لکھی جا رہی تھی اور جب تمہارے کمرے میں پہنچائی گئی تب بھی وہ سب آگاہ تھے۔ میں شرم سے پانی ہو گیا اور میری زبان کو تالا لگ گیا۔ بابا جی کیا سوچیں گے؟ غازی افتہامیہ انداز میں بولا۔ یہی سوچ رہے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر وہ تم سے نہیں پوچھیں گے، میں جانتا ہوں سرکار کو، شاہ صاحب بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے، وہ سب تم پر مہربان ہیں اور آج تمہیں بابا جی اپنے ساتھ کہیں لمبے سفر پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میں ان کا پیغام لے کر آیا تھا، لیکن تمہیں ہجر و وصل میں گرفتار دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ غازی یہ بری بات ہے یار، دوسروں کے راز نہیں پڑھتے، میں نے شکوہ کیا۔ ہم سے کیا راز؟ ہم تو ہوا ہیں، ہماری نظریں تو ہر سو ہوتی ہیں، ہم سے کیا پردہ بھیا؟ وہ بستر پر کھڑا ہو گیا۔ چلو اب بابا جی یاد کر رہے ہیں۔ میں غازی کی میت میں مہمان خانے میں پہنچا تو بابا جی سرکار اپنے چند مریدوں کے ساتھ ظاہری خد و خال کے ساتھ موجود تھے۔ شاہ صاحب بھی کرسی پر بیٹھے تھے اور وہ سب مجھے اس انداز میں دیکھ رہے تھے جیسے عدالت میں جج اور وکیل کسی ملزم سے جرح کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں اندر سے بہت شرم اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ آؤ ادھر میرے پاس آؤ، بابا جی نہایت شفیق انداز میں بولے۔ سناؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ آپ کی بس دعا چاہیے، پڑھائی تو بس واجب ہی ہے۔
मैंने नजरें झुकाकर कहा, मुझ में ताब नहीं थी कि मैं बाबा जी की तलिस्माती और गहरी सुरमई नजरों से नजर मिला सकता। इनकी नजरें मेरे अंदर तक उतर जाती थी और हर शय उथल पुथल हो जाती थी। फिक्र ना करो, इंशाल्लाह तुम पास हो जाओगे। हमसे करीब और उल्फत रखने वाले किसी इम्तिहान में नाकाम नहीं होते। बाबा जी ने मेरी कमर पर हाथ फेरा और बोले, मैं तुम्हें आज टाहली वाली सरकार के पास भेजना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँगा। मैं और गाजी तुम्हारे साथ होंगे। जी सरकार, मैंने कहा, कब जाना है? अभी, बाबा जी ने कहा। टाहली वाली सरकार आज उस कब्रिस्तान में चिल्ला काट रहे हैं जहाँ तुम कल गए थे और कालिदास तुम पर हमला आवर हुआ था। आज तुम हमारे साथ होगे। और हाँ, शाह साहब 12 स्याह बकरों का बंदोबस्त भी हो गया है। चावलों की 10 देगे मीठी भी तैयार हैं। टाहली वाली सरकार की नजरों न्याज का एहतमाम करना जरूरी है पुत्र। तुम नहीं जानते ये दरवेश लोग क्या शय होते हैं। आज हम तुम्हें एक दरवेश की मजलिस और हम लोगों के मामलात की एक झलक दिखाएंगे। मैं इस रात बाबा जी और गाजी के साथ नहर किनारे कब्रिस्तान में चला गया। बाबा जी आम इंसानों की तरह मेरे साथ साथ चल रहे थे। जब हम गांव से बाहर निकल गए तो आवारा कुत्तों का एक गोल कहीं से नमूदार हुआ और फिर अचानक इन्हें क्या हुआ, वो खौफजदा होकर भौंकने लगे। ये देखते ही बाबा जी कुछ देर के लिए गायब हो गए और कुत्ते भी खामोश हो गए। ये एक बड़ा अजीब मंजर था। कुत्ते अभी तक भौंक रहे थे। कुत्तों के मुसलसल भौंकने से गांव का चौकीदार भी हरासा हो गया था और उसने ऊंची ऊंची आवाज देना शुरू कर दी थी, होशियार हो जाओ भाई, होशियार, जागते रहो भाई, जागते रहो। मैं खुद भी परेशान हो गया कि अगर चौकीदार इधर आ गया और उसने मुझे रात गए कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देख लिया तो मैं इसे क्या कहूँगा। बाबा जी और गाजी गायब थे। मैं अब एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया था। मुझे खौफ था कि कुत्ते इकट्ठे होकर मेरी तरफ न आ जाएं। ये आवारा कुत्ते थे जो अजनबी को देखकर उसको काटने से बाज नहीं आते। मैंने अपने बचाव के लिए फैसला किया कि अगर कुत्ते मेरी तरफ बढ़े तो मैं दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। इत्तेफाक देखिए कि जब मैंने ये फैसला किया तो उस वक्त कम से कम 10-12 कुत्ते इकट्ठे हो गए थे और ग्रोह की सूरत मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। मुझे कभी दरख्त पर चढ़ना नहीं आया था। अगर कोई शाखदार दरख्त हो और उस पर ऊपर चढ़ने के लिए कोई सहारा मौजूद हो तो दरख्त पर चढ़ सकता था। मैंने खुद को बचाने के लिए दरख्त की पनाह तो ले ली थी, मगर जब इस पर चढ़ने का सवाल आया तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने उसके तने पर उभरे हुए एक टंड पर पांव रखा और उससे चिमटकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो थोड़ा सा ऊपर जाते ही मेरी सांस फूल गई और मैं दरख्त के साथ फिसलता हुआ नीचे आ गिरा। इस वक्त तक कुत्ते मेरे बहुत करीब आ चुके थे। मैंने महसूस किया कि कुत्ते अब खौफजदा होकर नहीं भौंक रहे, बल्कि इनके अंदर खौफनाकी और जारियत आ चुकी थी। उसी लम्हे गांव की एक गली से चौकीदार भी बरामद हो गया। वो अपनी जुबान में कुत्तों को पचकारने लगा था। उसके साथ और भी लोग नजर आ रहे थे। सबके हाथों में लालटेनें थीं। मेरे पास बचाव का कोई रास्ता भी नहीं था और फिर मुझे कुछ नहीं सूझी तो मैं ऊंची ऊंची आवाज में गाजी और बाबा जी को कोसने लगा, जो मुझे कुत्तों के सामने बेयारों मददगार फेंक कर भाग गए थे। मैंने उस लम्हे भागने का भी फैसला किया, मगर फिर ये सोचकर रुक गया कि मैं इतनी तेज नहीं भाग सकूंगा जितनी तेज में ये कुत्ते मुझ तक पहुंच सकते हैं। मुझे बचाव की कोई उम्मीद नजर न आई तो मैंने ऊंची ऊंची आवाज में चौकीदार को पुकारने का फैसला कर लिया। लेकिन यही वो लम्हा था जब दरख्त के ऊपर शोर बुलंद हुआ और ऐसा लगा जैसे दरख्त के ऊपर अजाब नाजिल हो गया है और कोई बहुत भारी भरकम शय दरख्त पर गिरी है। मैं बेसाख्ता दरख्त के नीचे से हट गया और फिर मैंने एक अजीब मंजर देखा। कुत्ते अब दरख्त की तरफ देखकर भौंकना शुरू हो गए थे, मगर अब उनकी जारियत दम तोड़ गई थी। वो खौफजदा होकर भौंकने लगे थे और उल्टे कदमों पीछे को हटते जा रहे थे। गांव के चौकीदारों को अल्लाह ने बड़ी खुसूसियात नवाजा होता है। उनकी हसासियत बड़ी तेज होती है। रात को उसके साथ गांव के कुत्ते ही नहीं चौकीदारी कर रहे होते, बल्कि मुर्गियां, बकरियां, दूसरे जानवर भी उसका साथ देते हैं। जब भी गांव पर कोई आफताब नाजिल होती है, चोर डाकू आते हैं, अजनबी गांव में दाखिल होता है तो सबसे पहले कुत्ता भौंकना शुरू करता है। अगर कोई किसी के घर में दाखिल हो जाए तो कुत्ते उसका ताक़ुब भी करते हैं। चौकीदार जानवरों की आवाज़ों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस सिमत में क्या हो रहा है, लिहाजा वो आफत की तरह उस तरफ पहुंच जाता है। बस उस वक्त गांव के चौकीदार ने भी भांप लिया था कि कुत्ते किसी शय से खौफजदा हो गए हैं, लिहाजा उसने अपने साथ आने वाले लोगों को खबरदार कर दिया होगा। इस वक्त इनमें से किसी ने बंदूक का फायर कर दिया था और फिर लालटेन की रोशनियां मुदाफत से निपटने के लिए बिखर गईं। इसका मतलब था कि लोग दायरा बनाकर किसी गैर मुतवक्किल सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हो चुके हैं। मुझे इस वक्त शदीद खतरा महसूस हुआ कि इन लोगों के पास बंदूकें भी हैं और ना जाने कौन बगैर देखे मुझ पर गोली चला दे। कुत्तों के शोर और दरख्तों के ऊपर बर्पा होने वाले अजीबोगरीब हालात ने मेरी कुव्वत गोयाई छीन ली थी और मैं जमीन पर बैठ गया। इसी लम्हे गाजी की आवाज़ बहुत करीब से आई, भैया इधर भाग आओ।
मुझसे भागा नहीं जाएगा। मैं अचानक उठ पड़ा तो मुझे अपनी टांगें बेजान सी महसूस होने लगी। खौफ ने मेरे अंदर से सारी कुव्वत खत्म कर दी थी। चूंकि एक रात पहले भी मैं इधर कब्रिस्तान में आया था तो कालिदास से खौफजदा होकर मैं बहुत तेज भागा था, मगर अब मुझ में इतनी कुव्वत ही नहीं रही थी। गाजी, मेरे अंदर भागने की सकत नहीं है। मैंने अपनी बेबसी का इजहार किया। मेरी बात सुनकर गाजी बोला, भैया कोशिश करो, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुम्हारे गिर्द कालिदास ने सहरी दायरा बना रखा है, इसी वजह से तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं रही। गाजी की बात सुनकर मैं मजीद खौफजदा हो गया और मुझे हवेली के बागीचे में पेश आने वाला वाकया याद आ गया। मैं कैसे हिम्मत करूं गाजी? मैं लाचारगी के मारे बोला, अगर तुम लोग इस कदर बेबस हो सकते हो तो मैं क्या शय हूँ? मैं कालिदास का सहरी दायरा कैसे तोड़ सकता हूँ? मेरे भाई, ये तुम कर सकते हो। बाबा जी सरकार ने दरख्त के ऊपर अपनी फौज उतारी तो है, जिससे कुत्ते खौफजदा होकर भागने वाले हैं, मगर ये मामला अब इतना आसान नहीं रहा। हरामखोर कालिदास ने अपने हरकारों को कुत्तों को इधर लाने पर मजबूर किया था और उसने जहां तुम खड़े हो वहां तक सारी दायरा कायम कर रखा था। तुम्हें पहले भी बताया था भैया कि हमारे और काफर जिन्नात के दरमियान जंग छिड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, मगर तुम लोगों की ये बस्तियां इस जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर हमने कालिदास पर हमला कर दिया तो पूरे गांव की छतें उड़ जाएंगी, घर तबाह हो जाएंगे और पालतू जानवर दहशत से मर जाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि पूरे इलाके में जहां अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं वो जलाल में आ जाएंगे और बाबा जी सरकार को अपने जलाल का शिकार बना देंगे। ये हस्तियां कभी नहीं चाहते कि जिन्नात, चाहे वो मुसलमान हो या काफर, इंसानी बस्तियों में जंगो जद्दल करें। इसलिए हम मजबूर हैं। बाबा जी सरकार मसलिहत और हिकमत के तहत कालिदास के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि कालिदास इनकी मसलियत को समझते हुए इसे अपने हक में फायदेमंद बनाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें शायद ये मालूम नहीं है कि कुत्ते जिन्नात को देखकर खौफजदा हो जाते हैं। जिन्नात को ये हुक्म है कि जब किसी इंसानी बस्ती में जाएं तो कुत्तों के सामने से ना गुजरें। अल्लाह ने कुत्तों को ये कुव्वत अता की हुई है कि वो जिन्नात की हकीकत को भांप लेते हैं। तुमने देखा है कि जिन घरों में कुत्ते रखे जाते हैं, अगर वहाँ किसी भी किस्म की गैबी मखलूक जाएगी तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं। मुसलमान जिन्नात अपनी हदूदों कयूद के पाबंद होते हैं। मुझे पहली बार गाजी की बातें सुनकर अफसोस हुआ। मैं इन्हें बेहद ताकतवर समझता था, मगर वो भी बेबस था। अगर मुझे इस लम्हा कोई नुकसान पहुंच जाता तो वो मेरी किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते थे। लिहाजा मैंने कहा, गाजी, मैं तुम्हारी बातों का मतलब क्या समझूं? तुम मुझे कालिदास के रहमो करम पर छोड़कर अजीब बातें सुना रहे हो। मेरे भाई, नाराज क्यों होते हो? गाजी बोला, मैं तुम्हें एक वजीफा बता रहा हूँ, अगर तुम ये पढ़ लो तो इस सहरी दायरे से बाहर निकल सकते हो। ये कहकर गाजी ने मुझे आयतुल कुर्सी की चंद आयात को एक खास तरतीब और तादाद के साथ पढ़ने की हिदायत की। इस वक्त मेरे जहन में कई सवाल उठे कि गाजी इन आयात को खुद पढ़कर मुझे इस आफत से क्यों नहीं बचा रहा। जिन्नात भी तो कुरान पाक पढ़ते हैं, इन्हें भी तो सवाब मिलता है। जिन्नात भी कुरान और वज़ाइफ लेकर पढ़ते हैं, फिर उसने मुझे ही ये वजीफा पढ़ने की हिदायत क्यों की है? मैंने सवाल को मौखर किया और वजीफा पढ़ने लगा तो कुछ ही देर बाद मेरे अंदर कुव्वत और तवानाई पैदा होने लगी। मैं तेजी से उठा और गाजी की तरफ भाग गया। मुझे यूं लगा जैसे कुछ देर पहले मैं ना महकूर था ना मजबूर। गाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और तेज तेज कदमों से कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। मैंने अकब में देखा, गांव वालों की आवाजें उस दरख्त के गिर्द महसूस हो रही थीं। दरख्त पर अभी तक आफताब नाजिल थी और माहौल में अजीब सी बिन बनाहट का एहसास बढ़ रहा था। गाजी बोला, भैया अब तो भागो। वो तेज तेज चल रहा था और मैंने बाकायदा दौड़ना शुरू कर दिया। वो लंबे लंबे डाक भरता, मगर मुझे उसे कदमों का साथ देते हुए पसीना आ रहा था। रास्ते में ही मैंने अपने सवालात की पटारी खोल दी और शिकवे के अंदाज में कहा, गाजी, सच तो ये है कि मुझे तुम्हारे रवैये ने कश्मकश में मुब्तला कर दिया है। मैं समझता हूँ जो तुम्हारे दिल में ख्याल पल रहा है। गाजी बोला, ये फितरी सी बात है, लेकिन एक बात याद रखो शायद भैया, तुम इंसान अल्लाह की बेहतरीन मखलूक को हमसे भी अफजल और आला। कुरान करीम की आयत का विर्द जब तुम मुसलमान करते हो तो उसके असरात की कुव्वत हमारी इस्तेदाद से बढ़कर होती है। जिन्नात यानी हम लोग इल्म में तुमसे कमतर हैं। अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है भैया, लेकिन अल्लाह करीम ने जो फजीलत तुम इंसानों को दी है और जो कुव्वतें तुम्हें अता की हैं, अगर हम जिन्नात को भी हासिल हो जाएं तो फरिश्तों में शुमार होने लगे। मगर हमारे खमीर और तुम्हारे खमीर का इम्तियाज हमें एक दूसरे के इल्म की फजीलत से मुख्तलिफ बना देता है। तुमने कभी सुना है, जैसा कि मैंने तुम्हें अपने भाई अरमान का किस्सा सुनाया था कि वो एक मौलवी साहब के पास जाकर दीनी तालीम हासिल करता था। हमारे बहुत से जिन्नात इल्म व फजल हासिल करने के लिए तुम्हारी दुनिया में आते हैं। मैंने तुम्हें इस वक्त वजीफा पढ़ने के लिए कहा तो उसका मकसद यही था कि तुम्हारी बशरी और अकली ताकतें
تمہیں سحری دائرے سے نکال دیں گی۔ تم نے اس وقت پورے یقین اور یکسوئی کے ساتھ وظیفہ پڑھا تو تم کامیاب ہو گئے۔ بابا جی بخوبی جانتے ہیں کہ تمہارے اندر روحانیت موجود ہے۔ جس انسان کے اندر روحانی وجدان ہو، اگر وہ وظائف اور ذکر و اذکار کرتا رہے تو اس کا روحانی وجدان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تمہارے انہی اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جی سرکار تم پر مہربان ہیں اور تمہیں ٹالی والی سرکار کے پاس بلایا ہے۔ ہمارے عقب میں اب شور کم ہو رہا تھا۔ ہم قبرستان پہنچ گئے۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، کہیں سے جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غازی نے میرا ہاتھ نہ تھام رکھا ہوتا تو میں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا، لیکن وہ میرے لیے ایک مشعل بردار راہبر بن گیا تھا۔ وہ مجھے قبرستان کے اندر لے کر داخل ہو گیا تو مان قبرستان کے اندر سے آوازیں بلند ہوئیں، حق اللہ، حق اللہ، یہ ٹہلی والے سرکار ہیں۔ غازی نے مجھے بتایا، ادھر دائیں جانب ڈیرا لگا کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے اسی طرف کا رخ کیا تو سامنے جھاڑیوں اور قبروں کے درمیان ایک دیا روشن نظر آیا۔